yesterday issue, I think you saw, right? That is solved by Narendra Modi government. What is your opinion on that, and what is your thought of process? See, first of all, I would like to say that Jammu and Kashmir, Yeah. it has always been a part of India. It has never been a part of India. This Pakistani claiming about Kashmir, and it's like Pakistan claim about many things. It's a group of organization. I think it's all. Personally, I think it's a terrorist country. And just now, what Narendra Modi and Amit Shah did for like finally the Jammu Kashmir is an Indian part. Actually, Jammu Kashmir is the crown of India, and now we can finally completely claim to anybody that it's an Indian part. It's a crown of India, and it should be in India. And giving the same flag, this flag, and this, it's like proof. Now we have the proof also that it is a part of India. It will be a part of India. And nobody can take it from us. And Jammu Kashmir will be in India. It's always been in India, and it is in India. Yeah, and more issues are there in Narendra Modi's government right now, and he will solve that problems also regarding Babri Masjid and Ram Mandir. Everything is there. That will be also solved in coming near future. What are you thinking? It will definitely will be solved because like if you compare with earlier governments, earlier what we can compare, we can definitely compare it with Congress. Huh? So, when Congress was there, these problems were still pending. Now these are big problems, which are those pending problems are getting solved day by day. Just in 5 years, and now it's like Narendra Modi again selected. I'm very much confident that this problem will be created, will be solved, and according for like my personal view on Babri and Masjid and this Ram Mandir, there will definitely be Ram Mandir will be built on that place. That's my personal opinion that Ram Mandir was always there, and it will definitely be built there. Thank you. Thank. Yeah, regarding Narendra Modi's government as of now, everything problems are being solving. He's solving everything. I mean, regarding important problems, what is your opinion or view on that decisions? पहली बात तो इतना बोलना चाहूँगा, पाकिस्तान क्या था? इंडिया का ही पार्ट था. इंडिया से अलग हुआ है. इंडिया बाप है और वो बच्चा है. और जो अभी तक पाकिस्तान चल रहा है ना कि कश्मीर लेगा, कश्मीर लेगा, कश्मीर लेगा, अबे इतनी औकात ही नहीं है पाकिस्तान की. कश्मीर इंडिया का ताज है. ताज को छीनेगा? अबे इंडिया का बच्चा है तू और इंडिया का ताज लेगा, बाप से बकचोदी करेगा. पाकिस्तान को पहली बात तो ये बोलना चाहूँगा, भैया पहले औकात देख लो अपनी. और तुम कश्मीर मांग रहे हो? अबे कश्मीर इंडिया का पार्ट है. और अभी नरेंद्र मोदी, अरे भाई क्या काम किया है भाई, अभी तक किसी ने नहीं किया. कोई गवर्नमेंट ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया. ना कांग्रेस किया, ना किसी के कारण में किसी में दम भी नहीं है जो कर सके. और नरेंद्र मोदी भाई, मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. उसने जो बड़ा काम किया है, आई डोंट थिंक कि कोई इतना बड़ा काम कर सकता है. और एक्शन नरेंद्र मोदी, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स ब्रो. उसने बोला और किया, और बहुत बड़ा काम किया. नहीं कर सकता कोई ऐसा. इंडिया में कश्मीर वापस आ गया, वहाँ पे फ्लैग आ गया. अब तो मैं तो चैलेंज करूँ कोई उसको अलग करके दिखाए. और बाकी तो बोलूँ भाई, नरेंद्र भाई पे अपने को इतना भरोसा है कि कुछ दिन में पाकिस्तान भी साफ हो ही जा रहा. आधा तो चाइना ने ले ही लिया. साले चाइना आधा तो घुसी गए उसी में. पूरी गवर्नमेंट तो उनकी चाइना की छो गई है. तो चाइना वाले में जब उनको ले गए, जब चाइना का माल हो ही रहा है, तो तुम्हारा भरोसा ही क्या है फिर? और बाकी आगे का अगर बोलेंगे कि कश्मीर में कुछ प्रॉब्लम होगा, ये होगा, वो होगा, तो भैया हमको अपनी आर्मी पे इतना भरोसा है. हमारी आर्मी ऐसी है कि जो पाकिस्तान जो बीच में आने का बोल रहा है कश्मीर को लेने का, चाहे तो आधे दिन में पूरा पाकिस्तान साफ कर दे. मगर ये इंडिया है भाई. इंडिया सबसे बड़ा कल्चरल कंट्री इंडिया है. सबसे बड़ी डाइवर्स कंट्री इंडिया है. तुम कहीं दूसरे देश में जाते हो ना, तुमको वीज़ा लगता है, ये लगता है, वो लगता है, तुमको कहीं आसरा नहीं मिलेगा. इंडिया आओ भाई, भाईचारे का असली मतलब तुमको यहाँ पता चलेगा. कहीं से भी आओ, कोई भी आओ, सहारा तुमको यहाँ मिलेगा. ये है इंडिया. Yeah, regarding Ram Mandir and Babri Masjid. अरे भैया, बनेगा तो राम मंदिर ही बनेगा. मस्जिद नहीं बन सकता. बनेगा तो राम मंदिर ही बनेगा, चाहे जो हो जाए. वो तो पक्का है. बनेगा तो राम मंदिर ही बनेगा, वरना मस्जिद तो बन ही नहीं सकता. बनेगा तो राम मंदिर ही बनेगा. डिसीजन कोर्ट में हो, भले कोर्ट का डिसीजन बाबरी मस्जिद बनाने में जाए, पर बनेगा राम मंदिर ही, चाहे जो हो जाए. क्यों? जय श्री राम. जो हो जाए वही बनेगा, तो राम मंदिर ही बनेगा.
And one more is there, and Narendra Modi is saying one caste, that is Indian caste. In future, coming future, he can do that. डेफिनेटली कास्टिज्म क्या होता है? कास्टिज्म कुछ नहीं होता है. अगर आप बोलोगे मैं कौन हूँ, मैं हिंदू. हिंदू मीन्स क्या है? तुम इंडियन हो. हाँ, कास्ट यानी क्या है? आई एम इंडियन. कास्ट क्या होती है यार? कास्ट कुछ नहीं होता है, बकचोदी है ये. Narendra Modi, I mean, many people or public are thinking that Narendra Modi will make one Indian, that is Muslim, Hindu, Sikh, everything, only one Indian. He can do that. डेफिनेटली ही कैन डू. ही विल डू इट. आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ही विल डू दैट. और कास्टिज्म भाई ये पॉलिटिक्स ने बनाया है. कास्टिज्म होता नहीं है, पॉलिटिक्स बनाती है वोट बैंक के लिए. वरना कोई कास्टिज्म नहीं होता है. सब इंसान है, सब मुंह से ही खाते हैं, सब वही करते हैं. कास्टिज्म कुछ नहीं है, पॉलिटिक्स है. और नरेंद्र मोदी आ ही गया है. पॉलिटिक्स तो ख़त्म हो ही रही है धीरे धीरे, और ख़त्म भी हो जाएगी. तो ये कास्टिज्म वगैरह जो बकचोदी इतने दिन से फैली हुई है ना, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी. देयर विल बी वन थिंग, ओनली वन कास्ट, दैट्स हिंदू, दैट्स इंडियन. उसके अलावा कोई मुस्लिम जाति वाति ये वो सब पॉलिटिक्स है भाई, और कुछ नहीं है. बकचोदी है और कुछ नहीं है. ख़त्म हो जाएगा ये, कुछ नहीं रहने वाला. और धीरे धीरे इफेक्ट दिख ही रहा है. आज 5 साल में मोदी ने जितना किया है, इफेक्ट दिख ही रहा है. सब इक्वल हो रहा है. पर अब वही है, एक दिन में थोड़ी ना होगा धीरे धीरे हो रहा है. पर उसका वर्क दिख रहा है, प्रोग्रेस दिख रहा है. आज इंडिया है प्रोग्रेस में. जम्मू कश्मीर आ गया भाई. मस्जिद छोड़ राम मंदिर भी बन जाएगा, और कास्टिज्म भी खत्म हो जाएगा. ये डेफिनेटली आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट, एंड आई एम कॉन्फिडेंट ऑन मोदी एज वेल एज अमित शाह. वेरी कॉन्फिडेंट. Thank you.